Hi everyone, Namaste. Welcome to Simplify Electricity. I am Kumar, and today's topic we will learn what is exactly difference between earthing and grounding. You might have come across these two words so many times, but very hard to differentiate what exactly the difference between earthing and grounding. हम कई बार सुनते हैं earthing and grounding, हम परस्पर एक दूसरे के लिए यूज कर देते हैं ये टर्म्स, बट आज हम जानेंगे एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है earthing and grounding में. अब सवाल है कि व्हाई वी कनेक्ट इन अर्थ, अर्थ में ही क्यों कनेक्ट करते हैं. तो रीजन है ये है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो. आपको पता होना चाहिए द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, और हमें ये भी पता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बहता है. लो पोटेंशियल, हम कह रहे हैं कि धरती का पोटेंशियल जीरो है, इससे लो और क्या हो सकता है, इसलिए हम अर्थिंग रॉड को कनेक्ट करते हैं सॉइल में, और यही मेथड को हम प्रेफर करते हैं बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो एंड current always flows from high potential to low potential. That's why we prefer earthing pit. Here in this slide, pictorial way, we try to understand that current always flows from high potential to low potential. Okay, the same thing I'm repeating here. The low potential means earth. The potential of earth is zero. Current always flow through low resistance path. Okay, we'll try to understand by one example. Here is the human being, and there's a one panel is there. Okay, and he's working on this panel. Accidentally, what happened? One face is touched with this panel. Okay, and he is working on the panel, so he is not aware of that one. So what will happen? Now the current will flow from this face to this panel, and through his body it will get grounded. It means he will get electrical shock. Damn sure. Okay. Now condition 2 happens that safely what he did while wiring on this panel, he connected one earthing wire to the earthing pit, and the same fault occurred again. Means now the current flow through this wire to this panel, instead of going through his body, it will run through this earthing pit and it will get grounded. So why? Because we have read that current always flows from high potential to low potential, and current always flow through the low resistance path. The resistance of the earth pit is too lower than this human body, so current will flow through the face, through this panel, through this earthing wire to this earthing pit, rather than through this face, panel and human body. Because answer क्या होना चाहिए आपका? Because the resistance of the human body is much larger than the resistance of this earth pit, so current never prefer to go through the high resistance path. It will follow the low resistance path. हमें इस स्लाइड से क्लियर हो गया कि अर्थिंग होने से ह्यूमन बॉडी को शॉक नहीं लगता है, क्योंकि करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है, और ये करंट जो है मूव होके ऐसे अर्थिंग केबल से अर्थिंग पिट में चला जाएगा और ये इंसान सेफ हो जाएगा. दैट इज एग्जैक्ट एजेंडा ऑफ द अर्थिंग. अर्थिंग क्यों करते हैं? टू सेफगार्ड द ह्यूमन हु आर वर्किंग ऑन इट. ओके, very simple example, that one lady is working in her house and she's using two pin plug for this iron box, one face and one neutral, and she's doing iron. Okay. Now what happened? One situation happened that now this face accidentally connected to this metal portion and she's doing press and she is not aware of it, and accidentally what she did, she touched this metal portion. Okay, what will happen? Again, current flow through this face to this metal portion to her body, and she will get what? Shock. Okay, here in this example we will see that the same lady is doing the ironing, but she is using a 3-pin socket and 3-pin plug. Here is an arrangement of earthing wire. You can see in the green color that green color earthing wire is already here. Okay. Now what happened? The same situation occurred. What? The face accidentally connected on the metal portion and she is doing the iron. Okay. So as per our knowledge in the earlier slide, we have seen that the current should flow from this face to this metal portion, and she touched this metal portion, so current flow through her body and she should get the shock. इस लाल वायर फेस से होते हुए, मेटल पोर्शन से होते हुए, इस लेडी के बॉडी से होते हुए इसे शॉक मिलना चाहिए. बट हियर इन दिस वी हैव connected the earthing
वायर। अर्थिंग वायर कहाँ कनेक्ट होता है? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड ऑन द बॉडी। सो नाउ करंट यहाँ से जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। फॉर द करंट देर आर टू पाथ्स, इधर करंट विल फ्लो थ्रू दिस वायर और फ्लो थ्रू हर बॉडी। अगेन current always prefer to flow through the low resistance path, so she gets safe and current will flow through this green wire and get earth. तो where to connect earth? तो आपका आंसर होना चाहिए earthing should always connected on the body. Here I have given the two example in a pictorial form that here in this DP distribution panel we have connected the earthing. Here in this body, it could be the compressor, it could be in refrigerator. You could see that earthing always connected on the body. Question number 2, why we should connect the earthing? To safeguard the human being from electrical shock. In this slide we will try to understand and address the question that is current always flow in earthing wire? क्या करंट हमेशा बहता है क्या ग्रीन अर्थिंग वायर से? तो आपका आंसर होना चाहिए नो। क्या होना चाहिए आपका आंसर? नो, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, फेस न्यूट्रल अर्थ अपने अपने जगह पे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, तो इसमें कोई करंट बहता नहीं है। नो, अगर इंसिडेंट हुआ कि फेस टूट के या फिर किसी भी तरीके से लीकेज करंट इस मेटल पोर्शन में जा रहा है एंड ये लेडी उस पर आयरन कर रही है और उसे टच कर गई, तो बॉडी ऑफ दिस लेडी रेसिस्टेंस जो है उनका बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस अर्थिंग वायर. द रेसिस्टेंस ऑफ दिस अर्थिंग वायर इज मच लोअर, सो करंट always prefer to flow through this earthing wire rather than her body. Okay, so आंसर है नहीं, अर्थिंग वायर में करंट बहता नहीं है। जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है लीकेज करंट या एक्सीडेंटली फेस टूट के गिर चुका है, कांटेक्ट में है मेटल पोर्शन के जिस पे आप काम कर रहे हैं, तब आपको ये सेव कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग that why earthing pin size is large in as compared to other two pins. You can see that these are the pins which are smaller than this earthing pin. Okay, बचपन से हम देख रहे हैं कि ये बड़ा होता है और ये दोनों छोटे होते हैं, ये फेस का है और न्यूट्रल का है एंड ये है अर्थिंग का है। क्यों ऐसे? द रीजन इज, और लंबा भी होता है राइट, इट इज लॉन्ग इन साइज ऑल्सो, क्योंकि जब भी आप इस सॉकेट में इंसर्ट करते हो तो सबसे पहले क्या जाता है, ये आपका अर्थिंग पिन जाता है सॉकेट में ताकि आपको पहले सेफ्टी मिले। हो सकता है कोई और प्लग इंसर्ट कर रहा हो और यहाँ पे आप पकड़े हो आयरन बॉक्स को, तो तुरंत शॉक लगेगा, इसलिए सबसे पहले अर्थिंग जाएगा, फिर देन फेस एंड न्यूट्रल जाएगा। तो ये है इसका आंसर, व्हाई द पिन साइज इज लार्ज and in lengthwise also why it is longer, because to insert it first. Okay, now we will see what is grounding. Grounding specially dedicated for three phase supply only. थ्री फेज सप्लाई में आपको क्या मिलेंगे, तीन फेस मिलेंगे जिसे हम कहते हैं आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस, मतलब ब्लू ब्लू, आर वाई एंड ब्लू फेस, और एक होता है न्यूट्रल जो कि ब्लैक कलर में होता है। ठीक है जी, तो जब भी हम लोड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम सोचते हैं कि आर पे, वाई पे एंड बी पे तीनों में बराबर लोड हो। अगर ये केस है तो न्यूट्रल में कोई भी करंट नहीं बहता है। अगर ये तीनों इम्बैलेंस है, मान लीजिए कि आर पे ज्यादा लोड है, वाई पे कम है, बी पे नहीं है लोड, इस कंडीशन में इम्बैलेंस करंट का जो रिजल्टेंट है वो न्यूट्रल से बहता है। बहता है तो कहाँ जाएगा? दो रास्ते हैं, या तो सिस्टम के अंदर ही बहेगा एंड सिस्टम को एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर इस न्यूट्रल को आप अर्थ कर दीजिए, जो भी इम्बैलेंस है वो न्यूट्रल से अर्थ हो जाएगा, जो आप ये कर रहे हो जिसे कहते हैं ग्राउंडिंग। एंड वी विल लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल्ड वे इन कमिंग स्लाइड्स। Here again we will try to understand that in a three phase machine, like जनरेटर से सप्लाई निकला, जनरेटर का ये वायरिंग है, आर वाई एंड बी फेस का वायरिंग है, और आर फेस निकला, वाई फेस निकला, बी फेस निकला, ये जो सेंटर पॉइंट है जिसे कहते हैं न्यूट्रल, एंड वी हैव कनेक्टेड दिस आर फेस, वाई फेस एंड बी फेस टू द लोड्स. ओके, तो if the load is equally distributed on R, Y and B phase, in that case there should be no current in the neutral. That is an ideal case. बट ऐसा होता नहीं है। करंट किससे मेजर करोगे? ये है क्लैंप मीटर, आप जो देख रहे हैं दिस कॉल्ड क्लैंप मीटर। लेकिन आर फेस में मान लीजिए 20 एम्प्स है, वाई फेस में 15 एम्प्स है एंड बी फेस में है ही नहीं, कोई लोड ही नहीं है। इस कंडीशन में इस न्यूट्रल से करंट बहने लगता है। तो
बहने लगता है तो इसके दो सॉल्यूशंस है, या तो छोड़ दीजिए तो ये वापस सिस्टम में ही घूमता रहेगा एंड सिस्टम को इफेक्ट करेगा, या फिर जो इम्बैलेंस करंट है वो क्या होगा, इस अर्थिंग कर दीजिए सो दैट हमारा सिस्टम सेफ चले। इस व्यवस्था को कहते हैं ग्राउंडिंग। Is your load balanced? How to check our load is balanced or not? So in this slide we'll try to understand. This is a generator, this is the generator, and this is the house. Now we are going to connect the output of this generator cable to this house. Okay, now this house has got 6 rooms. इस घर में 6 रूम है, ये 3 फेज जनरेटर है। आप कैसे कनेक्ट करते हैं, तो इससे निकले हैं 3 फेज R, Y एंड B। अच्छा, तो कैसे मेजर करेंगे कि इसमें कितना लोड है, एक टोंग टेस्टर से। ठीक है, अब ये स्टार्ट करते हैं। तो आर फेस, वाई फेस, बी फेस है, इसमें 6 रूम है। तो एक नेचुरल जजमेंट की तरफ से भी देखा जाए तो सर ऐसा है, 3 फेस है, 6 रूम है, तो हर फेस में 2-2 रूम कनेक्ट कर दीजिए। जी हाँ, तो आप ये 2-2 रूम में कनेक्ट कर दिए। फर्स्ट 2 रूम्स कनेक्टेड ऑन द रेड फेस, next 2 rooms connected on the y face, and next 2 rooms connected on the blue face. Okay, now you are measuring the current। अब चेक कर रहे हैं करंट। ओके, अगर तीनों फेस में लोड बराबर है, जैसे कि रेड फेस में 10 एम्स है, वाई फेस में 10 एम्स है, बी फेस में 10 एम्स है, तो इसे हम कहेंगे आपका लोड बैलेंस है। नहीं तो ना, योर लोड इज नॉट बैलेंस्ड। नाउ द कंडीशन नंबर 2, दैट कि हमने पहले से लिख दिया हेडिंग में, यू कैन सी दैट रेड में 20 एम्प्स है। आपने चेक किया, आपने बराबर तो बांटा, हर फेस में 2-2 रूम बांट दिए, गुड। बट जब चेक किए टोंग टेस्टर से या क्लैंप मीटर से, आपको दिखा रेड फेस में 20 एम्प्स, येलो फेस में 15 एंड ब्लू फेस में 25 एम्प्स। इज इट बैलेंस्ड? तो आप समझ में आ गया होगा, सर the current on all the 3 faces should be equal, then only we can say our load is balanced, otherwise it is called imbalanced load। तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट पिक्चर में जैसे कि मैंने कहा था, ऑलरेडी कवर्ड दिस वन, वेन एवर देर इज ए इम्बैलेंस लोड इज देयर, देन करंट विल फ्लो थ्रू द न्यूट्रल। इस न्यूट्रल से करंट बहेगा। अब ये बताइए, ठीक है, आप इस घर के मालिक हैं, तो कभी भी ऐसा कोई क्षण होगा कि आपका लोड हमेशा बैलेंस हो? मान लीजिए 6 रूम में दो रूम बंद है, तो डेफिनेटली उसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। एग्जाम्पल आप इंडस्ट्री के देख लीजिए, क्या हर मोटर चलता है क्या? तो आप ये मान के चलिए कि लोड कभी बैलेंस होता ही नहीं है। तो सवाल, तो सर क्या इम्बैलेंस होगा तो फिर न्यूट्रल में करंट जाएगा? जी हाँ, 3 फेज सप्लाई में हमेशा मैक्सिमम 100% यू कैन से दैट न्यूट्रल में करंट जाता है। तो उस न्यूट्रल में करंट जाता है तो ऐसे ही छोड़ दोगे तो सिस्टम को फॉल्ट में कम्स इन आवर सिस्टम, या फिर उसको अर्थिंग कर दीजिए, या फिर आप इस न्यूट्रल को इम्बैलेंस करंट जो न्यूट्रल से है उसको ब्लैक वायर से मैं दिखा रहा हूँ, एंड यू कैन कनेक्ट टू द अर्थिंग पिट सो दैट द इम्बैलेंस करंट शुड फ्लो थ्रू दिस न्यूट्रल वायर एंड दिस अर्थिंग पिट टू सेफगार्ड आवर सिस्टम। तो इसका मतलब सर 3 फेस में क्या हमेशा सप्लाई करंट बहता रहता है न्यूट्रल में? यस, दैट इज अ मेन डिफरेंस। दैट इज अर्थिंग में जब फॉल्ट होने पे अर्थिंग वायर से करंट जाता है, और 3 फेज सिस्टम में न्यूट्रल से हमेशा कंटिन्यू इसमें करंट बहता रहता है। सो दिस इज कॉल्ड ग्राउंडिंग, एंड द केस इन विच वी हैव सीन द आयरन बॉक्स and current will flow through the earthing wire only when something occurred, and here in this case current always flow through the neutral, और यू कैन से लाइव। इसे कहते हैं हॉट वायर भी कहते हैं, लाइव कहते हैं, क्योंकि हमेशा करंट इसमें से जा रहा है और इसको आपने अर्थफिट में कनेक्ट किया है। ओके, तो व्हाट अबाउट द इम्बैलेंस करंट? क्या होगा इम्बैलेंस करंट का? तो आप देखेंगे लोड शुड बी ऑलवेज बैलेंस, जैसे आपने पढ़ा आर वाई बी में सेम करंट होना चाहिए, द करंट शुड बी सेम इन आर एंड वाई एंड बी। ओके, बट ऐसा होता नहीं है। इम्बैलेंस करंट इन 3 फेज रिजल्ट इन करंट इन न्यूट्रल, जैसे मैंने कहा, और ये होता ही है। ओके, यही सबसे बड़ी डिफरेंस है। अर्थिंग यानी बॉडी पे कनेक्ट होता है, एंड ग्राउंडिंग माने न्यूट्रल को अर्थ पिट से जोड़ने को ग्राउंडिंग कहते हैं। और अर्थिंग तभी यूज होता है जब कभी लीकेज करंट हो या फिर फेस कट के बॉडी पे लग गया हो, तब ह्यूमन बॉडी को बचाने, ह्यूमन को शॉक से बचाने के लिए। और ये क्या है, इम्बैलेंस करंट है जो न्यूट्रल से बहता है, उसको अर्थ करना है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसलिए इसको अर्थिंग कहते हैं, या हॉट अर्थिंग भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप छोड़ दो तो क्या होगा?
सिस्टम में बहेगा एंड सिस्टम को खराब करेगा और कनेक्ट द न्यूट्रल टू द अर्थिंग पिट। ये हमने कवर किया। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि सेम है केस कि जनरेटर है, घर है, और हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि एकदम परफेक्ट, जो कि होता नहीं है, परफेक्ट, कि रेड फेस में 20 एम्प्स है, येलो फेस में 20 एम्प्स है, ब्लू फेस में 20 एम्प्स है। इस लोड को आप क्या कहोगे? बैलेंस। तो सर एज पर द थ्योरी व्हेन ऑल द थ्री फेस गेट सेम करंट देन देयर शुड बी नो करंट इन द न्यूट्रल। तो आपका न्यूट्रल में करंट बह रहा है अभी? आप कहोगे नहीं, बट दिस इज द आइडियल केस। ओके, now we will conclude that what is the purpose of earthing? To safeguard human being who are working on different systems like transformer, generators, उसमें जो काम कर रहे हैं उन्हें हमें बचाना है। कैसे बचाएंगे? बाई कनेक्टिंग द बॉडी ऑफ द ह्यूमन टू द अर्थ पिट। कैसे कनेक्ट करोगे? ग्रीन कलर का केबल होता है। ओके, तो कहाँ कनेक्ट करोगे? बॉडी पे। क्या इसमें करंट हमेशा बहता है? नहीं सर। जब कभी भी कोई लीकेज करंट ड्यू टू इंसुलेशन फेलियर या फिर फेस लग गया बॉडी से, तब ये आपको शॉक से बचाता है। इसका कलर होता है ग्रीन। इसमें हमेशा करंट नहीं बहता है। ग्राउंडिंग, न्यूट्रल को अर्थ करते हैं, इसे कहते हैं ग्राउंडिंग। न्यूट्रल को क्यों अर्थ करते हैं? क्योंकि सर इन थ्री फेज सप्लाई लोड हमेशा कांस्टेंट या बैलेंस नहीं होता है, तीनों फेस में सेम समान लोड नहीं होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल में करंट बहता है और उसे हम अर्थिंग पिट से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। तो सवाल आएगा, क्या हमेशा इसमें करंट बहता है? जी हाँ, क्योंकि ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। आइडियल केस में ही संभव है कि तीनों फेस में सेम करंट हो, अदरवाइज सेम करंट नहीं होता है, इम्बैलेंस करंट हमेशा होता है, जिस वजह से न्यूट्रल में करंट हमेशा बहता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं हॉट या लाइव अर्थिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें से हमेशा करंट बहता है। कलर इज ब्लैक। ओके, सो ऑलवेज करंट जो है न्यूट्रल से बहता है। So thank you for watching. Please do subscribe, and I hope this entire slides will be very helpful for you. And before leaving, I would like to ask one question that in 3-pin plug आप देखते हैं कट मार्क होता है मेटल में, ऐसा क्यों होता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। Thank you for watching. Please do subscribe. Thank you.